Good afternoon, everyone. It's an absolutely honor and pleasure to be here. So, without wasting time, I just read out some numbers, right? First, 160 billion transactions expected to go to 500 billion. 265 lakh crore rupees of value being transacted. 4,000 transactions per second, right? And India crossing China in terms of the value of transaction. How does it feel to be Vijay Shekhar Sharma, who's been the poster boy of making this happen? Thank you, Bhaiya. Well, I think all of us believe that our life will have something worthwhile to do and an opportunity to do. I truly feel privileged that we could have our role to play in this, the numbers that you quoted and the change or the behavior or the new thing that we could give to India. I'm truly humbled and honored by the opportunity that this country is given. And I would say that everybody, every one of us sort of supported this revolution. मुझे भैया एक लाइन याद आता है, हमने एक अखबार में कैंपेन चलाया था, जब तुम बदलोगे एक बदलेगा, हम बदलेंगे देश बदलेगा. And that is what the feeling it brings to me, that our country now is the way the world looks up to. And no doubt about it, before ये सब जब कुछ हुआ उससे पहले तक हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखते थे. जब हम यूएस वगैरह जाएंगे तो हमें लगता था क्या शूशा हो रहा है, क्या डेवलप्ड कंट्री है, ये हो रहा है. और इससे ज़्यादा अच्छी कोई और हम्बलिंग फीलिंग नहीं होती कि जब अब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कहते हैं विजय भाई हम वहाँ पे पेटीएम को मिस करते हैं, यूपीआई को मिस करते हैं, इंडिया के पेमेंट को मिस करते हैं. तो इट ट्रूली इज अ प्रिविलेज दैट वी कुड ब्रिंग द and contribute towards a change that India can be as a generational proud of it. Vijay, can you share a little bit more insight that, in last 20 years, obviously there, what really enabled, first of all, after Modi ji has come, he is really accelerated in this whole journey, right? And today, the payment system of India is the envy of the world, right? When we go out of India, nowhere in the world this kind of payment system is so vibrantly available. So before we get into the future, if you can really elaborate what made this happen. Made this happen. So I have a question. Is it okay that I speak English or only English? मुझे कभी कभार ये पता चलता है. आप हिंदी में बात करो, सारे हिंदुस्तानी हैं, क्या प्रॉब्लम है? I like it. अच्छा आप इंग्लिश बोल रहे थे. Alright. आप हिंदी में बात करो आराम से. नहीं मैं कुछ बोलना चाहता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एक हिंदी में एक बहुत ही मूवमेंट और ट्रूथ मूवमेंट है. सो 2008 मैं 197 कम्युनिकेशन जो कंपनी है वो टेलीकॉम वैल्यू एडेड सर्विसेज का काम करती थी. टेलीकॉम वैल्यू एडेड सर्विसेज होता है रिंग टोन, रिंग बैक टोन, जो हम लोग एक टाइम पे बड़ा अच्छा खासा बिजनेस मॉडल हुआ करता था वो करते थे. एंड एक इवेंट में मेरे से पूछा गया कि ये बताओ कि व्हाई कांट इंडिया प्रोड्यूस गूगल और फेसबुक ऑफ इंडिया. तो आई सेड लिटरली द प्रॉब्लम इज कि हम लोग in talent food chain, Indian startups come at the end. And I gave an example that I said, many of you will have your grandchildren, क्योंकि वो Thai USA के लोग थे in India. And imagine they're graduating out of IIT Delhi, IIT Bombay or somewhere. And उनके पास 3 job options हैं. एक है DE Shaw, US ले जाएगा, एक है Infosys और एक है 197 Communication Limited, Noida. Tell me how many of you will even suggest or think about what is this company that they could potentially join, and none of you will join. So we in food chain are the last party. हमें सबका ब्रेड क्रम के बाद भी जो ब्रेड क्रम बच जाता है वो टैलेंट मिलता है. और आपको जब एक बड़ी कंपनी बनानी होती है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनानी होती है, तो यू नीड द बेस्ट ऑफ द टैलेंट. एंड दिस ऑल चेंज्ड जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी आए और उन्होंने स्टार्टअप इंडिया फ्रॉम द टॉप बोला. सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्टार्टअप इंडिया फ्रॉम द टॉप, लोगों को अटेंशन आएगा. एंड मेनी ऑफ यू वुड रिमेंबर कि उस जमाने में रितेश मलिक हमारा जो ओयो वाला है से लेके सब बहुत ही यंग लोग स्टार्टअप बना रहे थे. एंड द थिंग दैट चेंज्ड
that Prime Minister Modi called out our startups was that we, from being the last person in the food chain, उन्होंने बोला लाइन अब यहाँ से चालू होगी तो वो थोड़ा मूवमेंट हिंदी फिल्म मूवमेंट वाला हुआ जिसमें कि लाइन अब यहाँ से चालू होती है. हम लोगों को टैलेंट पे राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल रोफर मिलता है. हम लोग अगर हम एक IIM में जाते हैं या वहाँ जाते हैं और companies have funding or business models, different stages we are talking about it. Young companies, first generation entrepreneur companies, technology companies, new age companies are able to attract day one talent in a top institute that you could think about. So पहले जो हम लास्ट फूड चेन में थे अब हम एक तरह से फर्स्ट हैं. एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ. व्हेन आई गो इन कॉलेजेस एंड मीट पीपल डोंट वांट टू टेक जॉब्स, दे रादर वांट टू गो टू अ कंपनी और अ स्टार्टअप. और आप लोगों ने दीपेंद्र वाला देखा होगा, भाई को 20 लाख रुपए देने के लिए 10,000 लोग आ गए. मतलब इतना तो मार्केट कैप बना लेता वो. सॉरी टू इंटरवीन, दिस इज द पॉइंट व्हिच आई एम कमिंग. 2011 में एक यूनिकॉर्न था, राइट? 2021 में 100 के ऊपर हो गए. हो सकता है 2030 तक हजारों में आएंगे, 200 के ऊपर हो जाएंगे. नहीं हजारों में जाएगा नंबर. विजय भाई, हमने वो हिंदुस्तान देखा है जब मैं 1991 में आया, वेयर मेकिंग मनी was the privilege of only 10 industrial houses. Yes. कौन कहाँ से लाइसेंस निकाल के ला सकता है, कौन क्या मैन्युफैक्चर कर सकता है और कौन क्या चीज मैनेज कर सकता है. Correct. This country has come on a huge edge, right? जिसमें this millions of aspirations have come. Correct. Now, you know that I have publicly and privately batted for you openly because I genuinely believe what you have done is the biggest service to this country. Like you have created dreams in India. You have given dreams to millions of people कि एक कोई अलीगढ़ का आदमी आके हिंदुस्तान में एक नई इंडस्ट्री में अपनी इतनी बड़ी पहचान बना सकता है. So the crux of the discussion of us, अमृत काल में, what is your message to those hundreds of people who are aspiring Yes. to be Vijay Shekhar Sharma, how they can become? Wow. First of all, thank you so much. मैं आपको एक लाइन भैया के बारे में बताना चाहता हूँ. एक हिंदी फिल्म में गाना है जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो. मेरे लिए भैया वो खुदा की तरह से है. So thank you भैया. I mean, you कहते हैं ना एक फॉलिंग नाइफ सिचुएशन होती है स्टॉक में. आई मीन मेरे को किसी ने मैं किसी को फोन कर रहा था, मैंने कहा यार दिस इज सो डिस्काउंटेड, वुड यू नॉट लुक एट इट. कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर था कंसिडरिंग दैट यू वर. कहता है विजय दिस इज कॉल्ड फॉलिंग नाइफ सिचुएशन, माय एनालिस्ट इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू मी टिल द टाइम पीरियड इट गोज बैक. तो उस नाइफ को पकड़ना या फिर एक तरीके से मार्केट में और कन्वर्सेशंस में सपोर्ट करना, प्राइवेट कन्वर्सेशन में, थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेल भगवान करे सबको आप जैसा एक एल्डर ब्रदर मिले. तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको भैया कि इंडिया में क्या हुआ है कि अगर हम कंपाउंडिंग थ्योरी लें और अगर हम अपनी अपॉर्चुनिटी थ्योरी लें तो इंडिया टेक्नोलॉजी और इंडिया यंग बिजनेसेस अपन लोग US और यूरोप के लिए मार्केट रहा करते थे हमेशा. And you can talk about Unilever used to be the company of this country, and I'm sure Dulux, I mean, Edco Noble should be the company of paint in this country. लेकिन यहाँ पे हर बार कोई ना कोई एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि मैं क्यों नहीं बनाऊँ यहाँ पे. And for the first time, technology gave wings and opportunity and scale and capability to companies and individuals to expand nationally. अपन लोग अब नेस्कैफे की कॉफ़ी पीने की जगह पे अब और टाइनी आउल और जो स्लीपी आउल है उसका कॉफ़ी देखते हैं. मैं किसी होटल में गया था, वहाँ पे वो वाला होटल में कॉफ़ी लगा हुआ था और मुझे मालूम है कि D2C ब्रांड है किसी एक फ्रेंड का. सो हो क्या रहा है भैया कि दिस कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू एक्सपेंड without going through the traditional monopolized channel, if you will. And millions of dollars of capital is actually backing, willing to back. मैं जो बताना चाह रहा था, जो हमारे साथ 2011, 12 और 15 और 20 में हुआ, वो ये कि हम लोगों को कैपिटल लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था. We used to have to go out. और अभी जब हम यहाँ देख रहे हैं तो आपने देखा यहाँ पे पिछली PE का भी एक फंड बन रहा है. तो अब इंडिया से हमें कैपिटल मिलता है. नाउ ऑल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड इंक्लूड्स मी, इंक्लूड्स मेनी ऑफ अस, आपने और कंपनीज के बारे में सुना होगा, वी रादर वांट ए डोमेस्टिक कैपिटल. तो हम ना इंडिया के अंदर कंपनी बना रहे थे
We did not have risk capital, but we had an opportunity. And that opportunity was being served to the bigger companies or rest of the world as a market opportunity. Versus, in this last 10 years, there is a different kind of feel that has come in the country. I mean, I'm not just talking about the companies which are young like us. I'm talking about Mahindra ने कल जो EV launch किया, वो कितना world class EV है. मतलब it is such an inspiring thing to imagine कि ये EV made in India ये कहाँ जाके जाएगा. तो भैया the world has looked up to the opportunity of India as a primary opportunity. Earlier the big houses or let's say industries which were there were the ones who were looking at it. विजय भैया मंत्रा चाहिए. मंत्रा मैं छोटा मंत्रा देता हूँ. मैं एक छोटा मंत्रा देता हूँ भैया. हमारा कंट्री 1947 में आज़ाद हुआ. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक 75 ईयर तो हो गए हमारे. हम अमृतकाल की बात करें तो मैं मेटाफोरिकली 75 यूज़ कर लेता हूँ, जबकि 79 ईयर हो गए. तो 75 साल में हम 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने थे. अब कितना भी कंपाउंडिंग कर लो, 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल, मैं कहता हूं आपकी लाइफ ऑफ प्राइम में इंक्रीमेंटली जितने हमारे बाबा परदादा की इकोनॉमी बनी, वो हमारी आंखों के सामने अगले 7 से 10 साल में बनेगी. कई गुना ज्यादा. $2.5 trillion to be distributed waiting in this country. Pick up your $1 billion. How will you not make this as your opportunity in the market? I mean, India offers the biggest of the opportunity, bhaiya. And in my opinion, this incremental $2.5 trillion that is being created as a value in India, that is being created as GDP incremental value in India, is all out there for us to be. इनफैक्ट हमारा उस पर पहला अधिकार है. मैं तो कहता हूं कि हमारा अधिकार यहां तक का है कि अगर हमें डिस्प्लेस करना हो किसी इंटरनेशनल कंपनी को तो वो भी करेंगे. एंड मेरा ये मानना है कि वेदर इट इज गवर्नमेंट, वेदर इट इज एनवायरमेंट, वेदर इट इज कस्टमर, वेदर इट इज इन्वेस्टर्स लाइक योरसेल्फ, दे आर चैंपियनिंग दिस. तो अगर अभी हमने नहीं किया, नो इटर्नल अवॉर्ड्स विल. मैं भैया एक लाइन बोलता हूं, जिम मॉरिसन की लाइन है ये. नो टाइम ठीक हो रहा है. नो इटर्नल अवॉर्ड्स विल फॉरगिव अस फॉर वेस्टिंग द डॉन. I understand the opportunity. टाइम ठीक हो रहा है. I want to come to the point. You know, आपका जो 20 साल का लर्निंग है, जो thousands of people who are in the hall and who listen to this video, what are the do's and don'ts for new entrepreneurs who are coming? Yeah. And how can they create $1 billion or a $10 billion Company, startup enterprise in India? Okay. So rule number 1, अपने पीछे जाने के दरवाजे बंद करके चाबी में ताला लगा के उसको फेंक देना, so that you don't have a way out. The rule number 1. That is mantra number 1. Don't think of exit. Now you are speaking. Only one way, that is forward. जैसे वो स्टोरीज आप लिखी जाएंगी ना आपके बारे में, इतना मिसाइल गिरा, इतना गिरा, आदमी लड़ाई हुआ, धमका हुआ, ये हुआ वो हुआ, बट वो पीछे नहीं गए. सो देर इज ओनली वन वे टू गो फॉरवर्ड. किसी दिन आप 10 फीट भागोगे, किसी दिन आप 10 इंच जाओगे, बट सो इट इज. नंबर 1, क्या एग्जिट रूट्स आर शट, देर इज नो ऑल्टरनेट. सेकेंड भैया, आपको ना ये ऑल इन होने का कॉन्सेप्ट समझ में आता है अपन लोगों को. आप ना हेज मत क्रिएट करना. मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, मैं आई एम नॉट बीइंग demeaning to the rest of the people when I'm quoting this. I'm rather going to say, जब हम लोग एक बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं, मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का हूँ, उसको आप बड़ा मानो छोटा मानो, बट मैंने ये देखा कि जब आप एक टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हो तो वो आपका बर्डन बन जाता है, क्योंकि आप सोच रहे होते हो इतने साल में मेरा IRR आ रहा है नहीं आ रहा. You know what I'm saying? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, this country offers a wider opportunity to think of not thinking of कि मेरा इतने टाइम का IRR क्या है, मेरी नौकरी में कितना पैसा मिल रहा है. उल्टा अपना काम स्टार्ट करना और काम स्टार्ट करके इस देश की सेवा करना. क्योंकि जब हम अपने कंट्री की सेवा करते हैं, जब हम अपने कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब हम अपने कंट्री की अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करते हैं, तो हमारा कंट्री बड़ा होता है. और जब हमारा कंट्री बड़ा होता है तो हम सब बड़े होते हैं. एंड ईच ऑफ अस विल बिकम बिगर बिकॉज ईच ऑफ अस इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट. भैया मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. मार्क जकरबर्ग से मेरी बात हो रही थी और एक टाइम था जब वो फ्री बेसिक्स लाया था. If you remember, there was a time and then he said, Vijay, it's good to know a lot of things, conversation, but who will solve the internet problem in India? I said, Mark, remember one thing. It is nice of you to think to solve the problem of India, but we Indians have an ability and capability to solve the problems of India. We'll solve for it. You don't have to bother about it. We are not third world in the technology world, at least that I can commit to you. And this is exactly what I'm calling about here. The world looks up to us in technology. The world looks up to us in solving the solutions. जो हम यहाँ बनाते हैं ना, वो दुनिया में जाके नंबर 1 बनता है. अभी तो अपने टैलेंट के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अपने सारे लोग जाके बाहर जाके कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं. तो आप सोचो कि अपने देश में क्या करेंगे. #गुजरात मॉडल. देखो गुजरात के लोग सब कुछ चलाते
चलाते हैं, देश भी चलाते हैं, तो सब कुछ जब वो चला सकते तो गुजरात में क्या नहीं चलाते होंगे। तो एग्जैक्टली द सेम वे आई एम सेइंग इन टेक्नोलॉजी दैट अपन लोगों की कैपेबिलिटी इतनी बड़ी है कि हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। जब हम उस दूसरे आदमी के लिए बना रहे हैं तो हम अपने कंट्री के लिए नहीं बनाएंगे। मतलब ये पेमेंट वगैरह जो बनाया भैया इतना मिनिस्क्यूल लगता है ना अपने को कि आई एम वंडर के पहले क्यों नहीं किया किसी ने। अगेन दिस इज द मूवमेंट वेयर द सपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, सपोर्ट ऑफ द कस्टमर्स एंड देन privilege of opportunity of getting the best of the talent to work for you is, and I think that is what I would say. How can you not do it? तो And आप दो ही बात बोले, एक तो दरवाजा चाबी बंद पीछे कर दो। फेंक दो और दूसरा बिलीव इन इंडिया। believe in India, Any ये दो other- स्टेटमेंट है। एनी अदर थर्ड पॉइंट? हाँ, थर्ड पॉइंट एक और है भैया कि हम लोग प्रोडक्ट मार्केट फिट और टाइम के बारे में शुरुआत में चिंता करने लग जाते हैं कि यार पेमेंट फ्री में होगा तो पैसा कैसे बनेगा, या फिर इसमें तो टाइम है नहीं, टोटल मार्केट में नहीं है, रेवेन्यू कैसे बनेगा। ये जो 0 to 1 स्टार्ट करते हैं उनको टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप चाहे गूगल की बात करो, चाहे फेसबुक की बात करो, चाहे पेटीएम की बात करो या कोई और जोमेटो की बात करो, उसने जब पहले चालू करा होगा तो उसने स्कैनिंग कर रहा था वो मेन्यू की, उसमें क्या पैसा बनेगा यार, क्या कर रहा है ये लड़का। तो मैं ये जो बताना चाहता हूँ, दिस इज वेयर द पेशेंस ऑफ डिस्कवरिंग द बिजनेस मॉडल कम्स। पहले डिस्कवर होता है एंटरप्रेन्योर, बाद में डिस्कवर होता है उसका बिजनेस, और उसके बाद डिस्कवर होता है उसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो एंटरप्रेन्योर डिस्कवरी इज द स्ट्रेस, पेन, what this person does when there is no hope left or there is no hope out there, and then he discovers a company and a team that goes together and then they can rule the market. I don't have to tell you it. I mean, so मेरा ये कहना है भैया, ये जो तीसरी वाली जो लाइन में बोल रहा हूँ कि शुरुआत में इस बात से मत फील बैड करना कि यार बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो छोटा वाला काम कर रहे हैं। आपका ये छोटा काम ही एक दिन बहुत कंपाउंडिंग और एफर्ट के साथ बड़ा होगा, that will rule the rule and market because you are staying on it. तो stay on it, stay on it, stay on it. Even though the tough time comes, but you will win it, you will win it. Let me try one more time, slightly differently. If you are starting today, let's say I roll back 25 years back when you started, and if you are starting today, what you would have done differently than what you have done in last 25 years? मुझे कुछ अपनी कोई पास्ट की ऐसी कोई मेथड समझ में नहीं आया जिसको कि मुझे जो चेंज करना चाहिए। तो पहले तो मैं कुछ ऐसा चेंज करूंगा ही नहीं। जो हुआ वो अच्छा, जो नहीं हुआ तो बहुत अच्छा। मैं तो वो वाली फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ कि भगवान ऊपर से डिसाइड कर रहा है, जिस दिन उसका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, मेरे को जो अपॉर्चुनिटी है तो मेरा भी काम बराबर हो जाएगा, और जब तक कुछ ऊपर वाले का कुछ काम करने का है तब तक मेरे को अपॉर्चुनिटी देता रहेगा। तो देयर इज नथिंग टू चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल इन द पास्ट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इफ आई वाज स्टार्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई think I would have not given in to the pressure of my family or peers। जैसे कि मेरे फादर टीचर थे और मेरी सिस्टर की शादी के लिए उनको हमारे घर में पैसे नहीं थे, जो आप लोगों को समझ में आता है, और बैंक वगैरह ने लोन वोन भी नहीं दिया। तो मैंने बहुत सारी जगह पे एक दिन जैसे होता है कंसल्टेंसी करते हैं, एडवाइजरी करते हैं, ऐसे कर करके बहुत सारा मैंने 10,000, 5,000, 2,000 ऐसे अर्न किया। ऐसे मेरा लाइफ चलता था। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं बहुत और अच्छा नेगोशिएट कर सकता था फैमिलीज के साथ, and I would have become rather more committed to build a larger and audacious market। तो भैया हम लोगों की एक लिमिटेशन होती है, हम लोगों के ऊपर एक कैप लग जाता है, और कैप मतलब टोपी वाला कैप भी सोच लो या फिर एक अपना एक्सपेक्टेशन कैप भी लगा दो। वी डोंट बिकम ऑडेशियस अनलेस वी हैव गॉन थ्रू सम मूवमेंट ऑफ ट्रूथ वेयर आफ्टर दैट वी फाइंड आउट कि यार मैं ये क्यों नहीं सोच रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ। एंड दैट इज व्हाट आई वुड हैव चेंज डिफरेंटली। पहले मैंने थोड़ा सा, जैसे मैंने टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ 10 साल काम किया, वो B2B2C काम था, अपन लोग पीछे थे। मैं अगर कंज्यूमर फ्रंट एंड में होता तो मैं पहले से ऐसे वाले चौके छक्के मार रहा होता। बट as they say, life has a lesson in learning. The single lesson I want to tell out of this is that be audacious of your expectations. India needs audacious leaders and audacious entrepreneurs whose expectations are extraordinary from themselves and their teams. And that is what will grow us forward. Not कि यार हम optimize करके चलते हैं, इतना तो हो गया, this is better than that and this is not better than up to that. और ये कोई मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है कि कौन सा और कंपटीशन है। मतलब एक बड़ी बात तो बताता हूँ भैया, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि you don't fear this or you don't fear that। मेरा एक ही मानना है, बड़े लोगों की बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, अगर उनकी अटेंशन आपके पास भी आएगी तो थोड़े दिनों में उनकी बड़ी प्रॉब्लम उनको खींच के ले जाएगी। आप अपना काम करते रहो। सो यू डू योर वर्क। आपको बड़े आदमी की बड़ी प्रॉब्लम के बारे में ना उसकी प्रॉब्लम की चिंता करनी, ना उसकी अटेंशन की चिंता करनी। आप अपना काम सही करते रहो, यू विल बी ऑन द पाथ। Vijay, now coming to this subject of UPI, and see, we have come a long way, like in digital payments, and I'm sure this is not even the halfway. Yes. According to me, what are the
things which lie ahead of us over the next 5 to 10 years. What will this digital transformation do to India growth story? And I'll put some numbers to what you were saying because we do more of these numbers. So we are, let's say, $4 trillion in terms of our GDP. And as per Government of India, which they presented in Davos, this is Government of India speaking, I'm not saying, right? They have said that we want to be a $35 trillion GDP by 2047. Right. तो बेसिकली 5000 साल में 4 बिलियन पे 4 ट्रिलियन पे आए अपन और अगले 25 साल में 4 से 35 ट्रिलियन पे जाने वाले हैं. तो ये पूरा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इफ आई टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमृत कॉल, ए how will it enable? B, what changes do you expect in this entire space? How exciting the road ahead is? Okay. So, first of all, in Amrut Kal or otherwise, let's just remember one big thing. If big remains to remain bigger and not it does not include everyone together, then this growth may not be of the scale that we're seeking. So there is an obligation of growing even the smallest of the business and micro of the business. And there comes this opportunity of the mobile payment and financial inclusion that we are talking about. Because if you notice, for a small shopkeeper on a road, there is no way that person has not done any compliance or registration or any other thing that even government who wants to help that person or regulator who wants to support financial institution to solve for them is able to identify them. So when we saw what we saw in Aadhaar, that bank account could open, the payment brings the heartbeat because of the traffic or the payment that happens, that this person exists on a financial system. So the payment is the heartbeat of financial system to identify there is a entity that is a merchant or a business. Sure. Once that happens, then whether it is support or whether it is opportunity creation, both can happen. And as we all know, this Amrut Kal numbers are possible only when access to market and access to capital will be the peak of availability to the more number of people. Sure. Access to capital to the larger businesses is easier, but how do we make access to capital to the everyone? And there, because of the payment as a traffic showing that this is the merchant, and then the underwriting, etc. models that we've created, and we are right now showing that this is very fair and possible method. I believe that the payment revolution will give birth to the dividend of access to capital called credit. And once the credit reaches the masses and the due businesses are able to get the money, they will create local jobs and they will create local economy that will grow to a country's economy. So creation of Viksit Bharat, creation of $35 trillion economy hinges on formalization of our economy, and payment is the beginning of it. In my opinion, the merchants, small businesses who are not aware of the access to the capital, cost of capital and all those factors at that level, right now need this even more, because this is the opportunity time where the economic growth and the advantage of economic growth should be dispersed to the masses. I firmly believe Paytm's commitment and the purpose remains solving for access to capital for those people. And then in due course, once the economy gets formalized, once the formal money starts to reach them, once the advantages of loan shark, etc. start to go away from them, but the formal economic help starts to come in, the India will bloom from the bottom. Right now, the economy is significantly tilted towards, let's say, agriculture or very less towards manufacturing or other services, but it will start to become more and more formal economy, and then more and more jobs will be created and more economy will grow from there. So financial system and formal financial inclusion is the beginning of India's Amrut Kal's obligation of growing, and there we believe as Paytm we have a big role to play. Sure, we'll talk about the Paytm, but just talking about the industry a little bit more. Do you think more technology changes are needed to, or the technology is good enough? It is more of execution of the same what we have done. What I'm asking you, we have come a long way in last 10 years. In the next 10 years, if you have to grow 5x or 10x of what we have done in last 10 years, what will enable that? Okay, so answer is technology inevitably will be upgraded.
I mean, I'm going to say that method of payment. When you don't have a phone, आप हाथ से पे करोगे, आपके फेस से पे होगा, आपने एयरपोर्ट पे आप चेक इन चेक आउट करते हैं उसको यूज करके. All those technologies are expected to be coming in when you don't have even your mobile phone in the hand to make a payment. Now that will take it to the next level also. Now I'm specifically talking about insurance and credit because both are needed. छोटे लोगों को उसमें इंश्योरेंस की मदद चाहिए और क्रेडिट चाहिए. तो चीफ रिस्क ऑफिसर और चीफ एक्चुअरी जो होते हैं वो मशीन्स बन जाएंगी. एआई को हम अंडर एस्टिमेट ना करें और अगर हम इवन बहुत ही फ्रैक्शनल प्लेस में लगाएं, सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 to 5 years में चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ अ बैंक प्रैक्टिकली विल बी अ मशीन कॉल्ड एआई मशीन. जैसे कि एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट में चलते हैं बट पायलट होता है, ऐसे उनका एक ह्यूमन चीफ रिस्क ऑफिसर तो जरूर होएगा, बट द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन बाय एआई मशीन विच विल गो बियॉन्ड द टुडेज क्रेडिट मॉडल्स, obligatory to help the masses to get credit. Right now this concentration of, let's say, access to capital will have to get democratized, will have to get massified. The good thing that has happened in India is we have Aadhaar, we have Jan Dhan, we have bank account, we have payment. These all are foundation layers for this important revolution. So technology, AI inclusive of the risk, inclusive of the method in the payments. मैं पेमेंट में बता सकता हूँ बहुत सिंपली. आप शॉप पे जाएंगे, वो आपसे लिटरली फेस देख के बोल सकता है, इज दैट इट मिस्टर शर्मा? यस, दैट विल बी इट, एंड देन योर पेमेंट विल बी सक्सेसफुल. सो स्माइल पे हमने अपनी तरफ से, मैंने उसका नाम स्माइल पे रखा हुआ है. यू नॉड एंड दैट इज पेमेंट डन. अदरवाइज आपने पाम पेमेंट बहुत जगह देखा होगा, इंस्टाग्राम वगैरह पे आपने रील्स देख लिए होंगे, तो ऑल दोज आर इनएविटेबल टू कम. व्हाट इज दैट इज हैपनिंग इज दैट परवेसिव डिजिटाइजेशन हो जाएगा. एंड जैसे कि हम लोग अब स्मार्टफोन के बिना नहीं रहते, ऐसी करके वो पेमेंट बिजनेस मॉडल्स एक और नेक्स्ट लेवल के परवेसिवनेस में पेंडिंग है. फैंटास्टिक. विजय भैया, एक जो obviously there is one question about the fintech industry in India, and that is regulatory challenge. I met with one of the very senior bureaucrat in this country, and he told me, you know, the people who are starting businesses, they want to first scale up the business and then later on worry about the regulation. Right? And it has come to many companies. What is your view on the overall regulatory landscape, challenges, and what kind of regulatory landscape changing which you see? And third point is, how should people cope with the regulatory challenges which are there? Because you have also recently gone through something like this. So, सबसे पहले मैं फिनटेक की डेफिनेशन कर देता हूँ हम सब लोगों के लिए कि 3 तरह के फिनटेक होते हैं. एक होते हैं जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं दूसरी कंपनी के लिए, जैसे टीसीएस इन्फोसिस को हम एक फिनटेक कंपनी बोल सकते हैं बिकॉज वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं. दूसरे लोग होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जैसे पेटीएम के पास एक पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैन वी डू क्रॉस सेल ऑफ रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, मेकिंग एक्सेस. एंड थर्ड होते हैं जो कि जिनको फुल लाइसेंस होता है, जैसे न्यू बैंक हुआ, ककाओ बैंक हुआ, और इंडिया में कुछ कुछ जो नए एज के बैंक माने, मतलब मेरी नज़र में 811 एक फिनटेक है और आईसीआईसीआई बैंक अपने आप में फुल फिनटेक है. मतलब व्हाट इज लेस इन आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक टू बी द फिनटेक. सो 3 तरह के फिनटेक हो जाते हैं. ये 3 बकेट्स होते हैं. मोस्टली हम पहले और दूसरे टाइप के फिनटेक की बात करते हैं. एंड फिनटेक में फिन ज़्यादा है या टेक ज़्यादा है, इसका कन्फ्लिक्ट होता रहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल नंबर 1, द फिनटेक्स आर ईदर द लाइसेंस्ड और नॉन लाइसेंस्ड. In my opinion, fintechs will be a license play, and you have a choice to be a distributor license or a book license. तो ये एक चॉइस फिनटेक के पास होगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस के अंतर्गत काम कर रहे हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या बुक ओनर बन के बैठे हो. नाउ इन माई ओपिनियन, क्योंकि पहले वो लोग सब लोग सोच रहे थे फिनटेक इंडस्ट्री में कि आई मे नॉट नीड अ लाइसेंस, आई मे रादर वर्क विद अ पार्टनर एट द बॉटम एंड आई कैन वर्क एज अ पार्टनर अनलाइसेंस्ड और पार्टनर लाइसेंस और कुछ भी जो कमर्शियल मॉडल है. दिस आई थिंक इज वेरी वेरी क्लियर नाउ. जो हम आपने जो बात बोला कि वो लोग रेगुलेशन को सेकेंडरी देख रहे थे, तो रेगुलेशन फर्स्ट एक ऑब्लिगेशन है. फिनटेक की सक्सेस के लिए रेगुलेशन फर्स्ट एक ऑब्लिगेशन है. फिनटेक की सक्सेस इसी बात में है कि हाउ दे आर रेगुलेटेडली एंड within the regulatory regimes are able to take care of the role that they play. In my opinion, the roles fintechs have are these 3, like I said. One is called only the technology, second is called distribution, and third is called owning the book. And
Paytm proudly plays in distribution, and remaining and keeping within the realms of fintech will allow them to contribute towards the financial system that their abilities can. As far as the other models are concerned, जिसमें कि वो quasi regulated और partial और वो सब model long term viable नहीं है. How about security concerns? Obviously, because in various forums, regulator as well as the government has raised that there is some kind of security concern. इसमें security और fraud एक बहुत ही interesting limitation हमारे customer base के कारण भी है. I mean, how many of you think that digital arrest हो सकता होगा किसी का? डिजिटल अरेस्ट कर लिया तुम्हें कैसे? अरे उसने मेरे को दिखाया वीडियो पे कि तुम अरेस्टेड हो और मुझे लगा मैं अरेस्टेड हूँ. ये तो नहीं हो सकता ना. मतलब डिजिटल अरेस्ट अगर हमारा कस्टमर बेस गलेबली और अज्यूमिंगली मान सकता है तो इसका मतलब हमारी एक इकोसिस्टम में हमारे को कस्टमर को और सपोर्ट करना है. So while the security concerns of, let's say, the various other attacks, cyber attacks, etc., can be looked at, and I believe that our India's infrastructure is significantly resilient to that, and we have shown. मतलब आप देखो ना जितने दिनों में अटैक हो रहे होते हैं तो कम से कम इंडिया पे फिंगर क्रॉस अभी तक इस लेवल के नहीं हुए कि वी हैव नॉट बीन एबल टू फेंड ऑफ और टेक केयर. बट एक डिफरेंट प्रॉब्लम इंडिया की जरूर है कि आर डिजिटल फर्स्ट कस्टमर्स डू नॉट fully understand the capabilities and the, let's say, impersonation, if you will. AI में जिस तरह से voice modulation और photo video modulation होते हैं वो एक अगली और trouble पैदा कर सकता है. So it is important for all financial system industry and players to support the customer education, that they have to understand that it is good that digitally distributed products will reach places, but digitally distributed fraud should not reach ahead of them is an obligation on the industry. So while we can talk about security, where I would say that we are significantly ahead and one of those good countries in the world, but at the same point of time, customer education is something that I would put a lot of bet on. Do we have a few more minutes, sir? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ. नहीं, मैं एक दो मेरे पहले क्वेश्चन है फिर आप. अरे जी, आप प्लीज एक सवाल का जवाब दो. मेडेलिटी चॉकलेटी कैसे बनी? मतलब आप ये बताओ कि हाउ हैव यू बीन एबल टू सपोर्ट दीज यंग. सब लोगों को लगा मैं जेन्युइनली सवाल पूछ रहा हूँ. भैया आपने यू वर्कड एंड यू सीन द लेजेंड्स ऑफ इंडियाज बिजनेस इंडस्ट्री एंड यू सी मेनी ऑफ अस हु आर यंग and I would say many faults and ability both come together, package हैं हम लोग. What is your lesson, your message, your observation to these young entrepreneurs जो public market में पहली बार आ रहे हैं, उनकी family में कोई और public market में नहीं आया, उनके लिए? विजय भैया, मैं इस क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. देखो, मैं आपकी जैसे ना, मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूँ and I think I'm very grateful to God and to my parents that I got this opportunity, right? तो मेरा फंडामेंटल वैल्यू सिस्टम ये है कि किसी न किसी ने मेरी अंगली पकड़ी थी और मैं जितनों की पकड़ सकता हूँ मैं पकड़ना चाहूँगा. Wow, thank you. So whether it is the entrepreneurs or investors, मेरे को कभी कोई होटल में भी मिल जाए ना, I swear to God, अगर मेरे से कोई दिल से पूछ ले कि क्या लेना चाहिए, मैं उसको कभी डिसअपॉइंट नहीं करता हूँ. राइट या रॉन्ग जो भी होगा, टीवी में जाके तो बोल नहीं सकता हूँ मैं ये लेना चाहिए, पर वो रेस्टोरेंट में कोई मिलता है उसको जरूर बोल देता हूँ ये ले लेना करके. So that is the point number 1. See, the point number 2, विजय भैया, जो है ना, the real opportunity which India throws specifically in this new age world, that अब हमारे जमाने में तो 2 करोड़ कैपिटल नहीं मिलता था. आपका जमाना अभी भी है भैया? नहीं, मैं 1991 when I started, I'm saying when I started, उस समय 2 करोड़ का कैपिटल भी नहीं मिलता था. आज कोई आइडिया के ऊपर 200 करोड़ का कैपिटल भी मिल जाता है. तो कैपिटल की कमी नहीं है, राइट? नाउ इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन एंड रेस्पेक्टिंग द कैपिटल. So one of the thing which I think entrepreneurs who are coming young, they should change, is that just because abundant capital is available, they should not just, do misallocation of capital. Because at the end क्या होता है, आपकी enterprise तो बहुत बड़ी बन गई, पर आपके हाथ में 2%, 3%, 5% स्टेक रह गया, राइट? और आपने देखो ओए वाले भाई ने क्या किया, उन्हें 2 मिलियन से चालू किया, 10 बिलियन तक गया, और फिर 10 बिलियन में खुद की इक्विटी उसको लेने की सोचनी पड़ी. इट वाज अ ब्रिलियंट idea and a concept, but maybe
from a capital market perspective, he could have executed it differently. मतलब उतना dilution नहीं करना चाहिए. The more of the, and the third, I will feel that you guys need to educate people like us. There is enough money in India. मैं बोला $1 trillion का विजय भैया सेविंग है इंडिया में, $1 trillion का, right? So if you educate people like us, we are willing to take a bet. So डोमेस्टिक कैपिटल के पीछे आपके जैसे लोगों को ज़्यादा जाना चाहिए, रादर देन स्टिल रिलाइंग ऑन वीसी कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी एंड दिस एंड दैट. मैं एक एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम को बोलता हूँ कि उनको लगता है कि जब ये आइडिया स्टेज में है, जिसमें सॉर्ट ऑफ आप मार्केट में सुनते हो कि ये अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो मैं इसको टच नहीं करता वाले जो मॉडल होते हैं, और पब्लिक मार्केट के इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, हो सकता है कि प्राइवेट मार्केट में वो एक भिन्न प्रकार से लगाएं कैपिटल. तो एंटरप्रेन्योर को ये एजम्पशन होता है कि इंडिया में एक आइडिया कैपिटल, एक कैपिटल जिसपे आपको नॉट प्रॉफिटेबल फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स है, उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा. उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल. What about the entrepreneurs who are raising money today in a early days? आई वुड से बिल्कुल गलत है विजय भैया. आइडिया के ऊपर बहुत पैसा सी इंडिया का जो सबसे यूनिक एडवांटेज है ना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप ओनली. आज आप नरीमन पॉइंट में चले जाओ, आपको 200 एंटरप्रेन्योर मिल जाएंगे. कोई सिगरेट बीड़ी बेच रहा है, कोई पाव भाजी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है. So there is ample entrepreneurship and there are enough number of people who are willing to back entrepreneurs. You go back to the age of Dhirubhai Ambani. उन्होंने जब रिलायंस बनाया तो उनके पास कोई थोड़ी प्रॉफिट था, एक ड्रीम ही था ना, और मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स बैक्ड हिम. आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन इज कि आपके आइडिया में कितना दम है और आप में कितना परसुएशन पावर है टू कन्विंस द पीपल हु हैव गॉट द मनी टू गिव यू द मनी. Okay. I don't think there is any lack of capital. Very beautifully. Yeah. Now, final question around public listing. बहुत सारी young companies market में आई, different stages of cost, profit, loss, different stages में आई. What is your message around the maturity of these companies? What is the correct stage to go for IPO? जैसे कि SME IPO में तो हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत different तरह का exchange है, but we are talking about when should an entrepreneur think what is a single KPI कि इतने, जब तुम्हारा इतना revenue हो रहा हो, जब तुम्हारा इतना profit हो रहा हो, या फिर profit छोड़ो तुम इतने scale के हो, तब एक public market size करता है. When is it is not premature to go for, and maybe late तो कोई company मुझे लगता नहीं है होगी, तो rather early होगी, तो when is a correct optimum time for young companies to come for IPO? तो मुझे I'll answer this question first. Before that, I will say even mature companies ना, see stock market 34 साल का मेरा ये अनुभव है, markets are love at first sight. अच्छा. या ये हो जाता है या फिर बहुत देर लगती है. तो कभी ना कोई प्रेशर में आके आप IPO मत करो, चाहे वो आपका प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर का प्रेशर हो, चाहे कोई पब्लिक इन्वेस्टर का प्रेशर हो, चाहे बैंकर का प्रेशर हो. फिर अल्टीमेटली कंपनी आपको चलानी है, और अगर आपने कोई गलत स्टेप ले लिया तो जिंदगी भर फिर वो आपको डिफेंड करना पड़ेगा. तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ना मेरे पास जो लेके आते हैं, हमको ये वैल्यूएशन चाहिए, मैं तो उसको यही बोलता हूँ, भाई तू टेबल टर्न करके देख ले. अगर ये कंपनी तेरे पास पैसा होता और तेरा खुद का पैसा लगाना होता तो तू ये वैल्यूएशन पे लगाया होता क्या? अच्छा, राइट. That's तो मैं क्या बोल रहा हूँ विजय भैया, ये ना बहुत लंबी जर्नी है वेल्थ क्रिएशन. एक प्रॉब्लम है इसमें, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हम बात कर रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं. उसी दैट इज उनको व्हाई ये पता नहीं चलता कि किसकी एडवाइस, जब कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस हो या फिर एक तरह का एक डायरेक्शनल सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लोग बोल रहे हो, उसमें कहाँ से वो चेक करे. हाउ टू फाइंड द बैलेंस और अ चेक ऑफ व्हाट दे आर गोइंग टू. यू गो टू ए न्यूट्रल पर्सन जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा. फिर सपोज आप मेरे को मिलने जब आए, मेरा आप में जीरो वेस्टेड इंटरेस्ट था, तो दैट्स व्हाई आई गिव यू द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस फ्रॉम दिल से कि आप इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, राइट. तो आप न्यूट्रल आदमी के पास जाओ ना, आप बैंकर के पास जाओगे, हाउ कैन ही गिव यू एडवाइस विच इज नॉट, ऑब्वियसली ही वुड लाइक टू डू द ट्रांजेक्शन. उसका धर्म है ना, उसको तो ट्रांजेक्शन करना है कोई भी हालत में. फिर एक फाइनल सवाल, मार्केट के लोग बैठे हैं इसमें, कुछ कंपनियां मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से, नए एज की कंपनियां काम कर रही हैं, दे आर इन्वेस्टर्स डार्लिंग नाउ. व्हाट अबाउट द मैसेज टू those companies, entrepreneurs, and what about the other companies that are yet not the investor darlings? What makes them, आपने जैसा बोला ना, मार्केट एक लव एट फर्स्ट साइट होता है, तो what is that
both of them should do? जिसको प्यार मिला जब है, आप जिसको प्यार पहला मिला। पहला बात ये कि यू हैव टू बिलीव इन इंडिया एंड यू हैव टू बिलीव इन कैपिटल मार्केट्स ऑफ इंडिया. वी थिंक दैट इंडिया इज अ करप्ट कंट्री और यहाँ पे कुछ भी चल जाता है. बट अगर आप देखोगे किसने हिंदुस्तान में वेल्थ बनाई है, किसने बनाई है वेल्थ? इन्फोसिस ने बनाई है, विप्रो ने बनाई है, हाँ. हिंदुस्तान लीवर ने बनाई है, Correct. नेस्ले ने बनाई है, पेटीएम ने बनाई है. यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है. यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है. तो इफ यू बिलीव कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है ना, एंड यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन एंड इफ यू हैव ट्रू कन्विक्शन इन योर आइडिया, देन दिस कैपिटल मार्केट्स आर मॉडर्न टेम्पल्स. ऑफ कैपिटलिज्म. ये कलयुग, ये अभी के मॉडर्न के टेम्पल्स हैं. ये कैपिटलिज्म के रियल टेम्पल्स ये हैं. राइट? यू कैन यूज इट और यू कैन अब्यूज इट. देयर आर मेनी पीपल इन माय लाइफ आई हैव सीन हु हैव अब्यूज्ड इट, बट वो पहुंच नहीं पाए ना कहीं पे. तो आपका कहना है कि तो आप इसमें बिलीव करो. ये इसका दिल, अगर मार्केट का दिल आपके ऊपर आ गया ना, तो ये आपके लिए कुछ भी कर देगा. And we have seen many companies being built on the basis of the stock market, including even you look at companies like Infosys. अगर Infosys को ये वैल्यूएशन नहीं मिलता, तो वो जो thousands of crore rupees के स्टॉक ऑप्शंस जो Infosys के एम्प्लॉइज को मिले हैं, जिसके बेसिस पे बेसिस द कंपनी का फाउंडेशन ले हुआ था. एंड वी हैव सीन मेनी मोर एग्जांपल्स लाइक दिस. तो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर मेंटर, बिकॉज ये एक बहुत एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट होता है. बी यू हैव टू रियल लॉन्ग टर्म बिलीव इन द कन्विक्शन एंड मैं बोलता हूँ भैया आपको सब चीज सही तरीके से ही करना पड़ेगा. शॉर्टकट इज द बिगेस्ट लॉन्गेस्ट कट इन लाइफ. कोई भी शॉर्टकट कभी लाइफ में चलता है. शॉर्टकट इज द बिगेस्ट कट. Yeah. फाइनल एक क्वेश्चन सबके लिए, क्योंकि आई हैव ऑडियंस विद यू. 1 साल बाद सेंसेक्स, 2 साल बाद और 10 साल बाद. तो मेरे को 1 साल का मालूम नहीं विजय भैया. 1 साल का नहीं, 10 साल. आई विश आई वाज द मैजिशियन. मैं इतना बोल सकता हूँ आपको, अभी ये 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी 25 होगा कि 30 होगा कि 35 होगा, ये मुझे नहीं मालूम. पर ये होगा, डायरेक्शन बहुत एकदम अपवर्ड है. इंडिया का फाउंडेशन स्टोन एकदम सॉलिड लेआउट हो गया है. अपना जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फिनोमिनल है इस वक्त. आप देखो, अमेरिका और रशिया एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और वो दोनों स्टेज में जाके बोल रहे हैं हिंदुस्तान हमारा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है. राइट? इससे ज्यादा अच्छी सिचुएशन में आप हो नहीं सकते हो. राइट? तो ये सब पूरा चाइना +1, यूरोप +1, एवरीथिंग इज नाउ वर्किंग इन फेवर ऑफ इंडिया. सो आई थिंक देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन विच इज लेफ्ट. And it is not linked to where the Nifty will be or where the index will be. It is truly being able to identifying great entrepreneurs, backing them full-heartedly, believing that in the market your patience will be tested, but your conviction will be rewarded. At the end of the day, you have to have conviction. Now, before I end, I have one final question for you, which is coming from my heart. If Vijay Shekhar Sharma was not in payment business, and if he had $1 billion to invest, what are the 3 businesses he will back today? I'll invest only in one business, and that would be based on AI first company of this country. Absolutely everything else is small in front of AI. 2011-12 में मैंने एक line coin करी थी. If you are talking about future and if you're not talking about it on smartphone, you're not talking about future. Exactly the same way I can tell you today, if you're talking about future and your future does not base itself on existence of AI as a first reason to exist, you are not talking about future. 100% all in AI. Outstanding. Thank you so much, Vijay. Thank you so much, Bhaiya. Thank you so much for candid conversation.